नाज़रीन, तेलंगाना के सियासी सफ़र में आज हम सफ़र करेंगे हल्का असम्बली नलगुंडे का। हल्का असम्बली नलगुंडे को इस लिहाज से अहमियत हासिल है कि ये बाअसर रेड्डी तबके का सियासी गढ़ समझा जाता है। यहाँ पर जो साबिक़ा एमएलए हैं कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, वो लगातार 5वीं बार इस असम्बली हल्के से मुकाबला कर रहे हैं। 4 बार वो लगातार जीत चुके हैं। 5वीं बार इनका मुकाबला समझा जाता है कि टीआरएस के उम्मीदवार के भूपाल रेड्डी से है। दोनों तरफ रेड्डी बिरादरी के उम्मीदवार हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ के रुझानात हैं। हम इस सफ़र के लिए इंतखाब करते हैं तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की एक बस का, जो यहाँ से रवाना होगी, यहाँ से सफ़र का आगाज़ करेगी और हम पहुँचेंगे नलगुंडा टाउन को, जो मरकज़ समझा जाता है नलगुंडा हल्के असम्बली का। आइए हम अपना सफ़र जारी रखते हैं। नलगुंडा हल्के असम्बली के लिए हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये जो सफ़र है हमारा नारकेटपल्ली से नलगुंडे तक आधे घंटे का सफ़र है। अब हम यहाँ पर चंद मुसाफिरीन से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके लिए जो है ये असम्बली इलेक्शन का क्या मतलब है, क्या क्या उनके ख्वाहिशात हैं, किस तरह इससे पहले की हुकूमत ने उनके लिए काम किया है और वो अगले इलेक्शन में किस किस्म के उम्मीदवार को वो अपना एमएलए बनना पसंद करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं एक मुसाफिर से। सर, మీరు చెప్పండి, ఈ ఎలక్షన్ వస్తున్నాయి కదా, అయితే మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? మీ ఫస్ట్ మీరు చెప్పండి, మీ నివాసం ఎక్కడ ఉంటుంది, మీ నియోజకవర్గం అది ఎండ్లా వస్తుంది? మాది ఆలేరు నియోజకవర్గం అండి. ఆలేరు చెప్పండి, మీ అక్కడ ఆలేరులో ఏం పరిస్థితి ఉంది? అక్కడ ఆలేరులో అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఫెసిలిటీ అంటే మాకు జైన్ మందిర్ ఒకటి పొలంపాక ఒకటి ఫెసిలిటీ అంతే. యాదగిరిగుట్ట, యాదాద్రి జిల్లా. అయితే చెప్పండి, ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఈ 4 ఇయర్స్లో, లాస్ట్ 4 ఇయర్స్లో ఎటువంటి పనులు అయ్యాయి? మీరు ఎట్లా దాని తృప్తి చెందుతున్నారు అక్కడ ప్రజలు? అంటే మామూలుగా అయితేనే ఉన్నాయి అనుకో. ఇప్పుడు యాదాద్రి జిల్లా గుట్ట వరకు అయితే మామూలుగా పనులు అయితేనే ఉన్నాయి, చేస్తూనే ఉన్నారు. మీరు ఎక్కడ దాకా వెళ్తున్నారు? నేను నల్గొండ వెళ్తున్నాను. ये से आपका कहना है कि ये इनका जो है मुकाम आलेर है, वो नलगुंडा के लिए सफल कर रहे हैं और जो वहाँ पर तेलंगाना के क़याम के बाद वहाँ जो तरक्याती काम हुए हैं वो उससे जो है बिल्कुल मुतमईन है। आगे बढ़ते हैं और एक और हमारे साथ नौजवान हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। మీరు హిందీ మాట్లాడతారండి? తెలుగు మాట్లాడతారు. సార్ చెప్పండి, మీ పేరేంటి? మీరు ఎక్కడ, నేటివ్ ఎక్కడ? నా పేరు మనీష్ అండి. మాది భువనగిరి నియోజకవర్గం. మా ఎమ్మెల్యే గారు పైలేశేఖర్ రెడ్డి గారు అండి. ఎమ్మెల్యే గారు అంటే మా దగ్గర ఉన్న ఎమ్మెల్యే గారు ఒక్కొక్క ఊరికి దాదాపు వేరే హయాంలో చూసినట్టయితే, టీడీపీ కాంగ్రెస్ హయాంలో చూసినట్టయితే ఊరికి రావడానికి ఎలక్షన్ టైంకి వచ్చేది ఉంటే మళ్ళీ అదే ఎలక్షన్స్కే వచ్చేది. కానీ మాకున్న ఎమ్మెల్యే, మా అదృష్టం ప్రకారం ఒక చిన్న పల్లెటూరికైనా కానీ ఈ 4 కాలంలో ఒక్కొక్క ఊరికి 20 నుంచి 25 టైమ్స్ వచ్చారండి. మళ్ళీ ప్రతి చిన్న గ్రామానికి కూడా 50 నుంచి 60 లక్షల వరకు వేశారండి. మళ్ళీ తనే ఎమ్మెల్యే అయితే బాగుండండి, కంపల్సరీ అవుతారు. భువనగిరి నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే పైలేశేఖర్ రెడ్డి. इन नौजवान का मानना है कि ये जो है भुवनगिर जो हल्के असम्बली हैं वहाँ के रहने वाले हैं, वो बहुत खुश हैं। वो कहते हैं कि इससे पहले जब जो एमएलए हुआ करते थे वो बड़ी मुश्किल से वहाँ पर आते थे। जब एक बार इलेक्शन के वक्त दिखते थे लीडर्स, तो फिर इलेक्शन के बाद ही वो उनका चेहरा जो दिखता था। अभी जो टीआरएस के एमएलए हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं और लोगों से। मेरे साथ एक और नौजवान हैं जो वो बता रहे हैं कि वो फार्मेसी के ग्रेजुएट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। మీ పేరు చెప్పండి? నా పేరు జైతురామ్. నేను బీఫార్మసీ వరకు చదువుకున్నాను. ఎందుకంటే చాలా హైదరాబాద్లో చాలా మన కేసీఆర్ గారు అసలు నిరుద్యోగులకు ఏమీ చేస్తలేడు. మన నరేంద్ర మోడీ అయినా సరే మనం దయచేసి మన యువతులకు మన ప్రభుత్వం చాలా ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, కానీ వాళ్ళ సక్రమంగా గవర్నమెంట్ జాబు రిజల్ట్ రాక చాలామంది నిరుపేదలకు పని చేయలేక రోడ్ మీద చాలా ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ డిగ్రీ చేసి కూడా చాలామంది రోడ్డు మీద తిరుగుతున్నారు. దయచేసి మంచి ప్రభుత్వం వచ్చి మన యువకులకు చాలా మన హైదరాబాద్లో మన ఇప్పుడు మన జరుగుతున్న భారతదేశంలో చాలా ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, కానీ చాలామంది కారణాల వల్ల
చాలా ఉద్యోగాలు ఇవ్వట్లేదు అసలు అసలు ఏం పట్టించుకోక ఇవి చేస్తున్నారు. మీరు ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారు? నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రెడ్డిష్ ల్యాబ్లో జాబ్గా చేస్తున్నాను. ఒక 10 months అయ్యింది. నేను కూడా చాలా రోజుల నుంచి ప్రిపేర్ అయ్యి గవర్నమెంట్ జాబ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మీకు వేతనం ఎంత వస్తుంది? నాకు వేతనం 10,000 వస్తుంది ఇప్పుడు చూడ అంతే. కానీ గవర్నమెంట్ జాబ్ రావాలని నాకు కూడా కోరిక బాగా చాలా ఉంది. నేను దాని చూసి కష్టపడుతున్నాను. చాలా మా నిరుపేద కుటుంబం దాకా చాలా రోజుల నుంచి ట్రై చేసి దాని తర్వాత ఒక జాబ్లో ప్రైవేట్ జాబ్గా చేసుకుంటా ప్రిపేర్ అవుతున్నాను కాంపిటేటివ్ एग्जाम की प्रसाद। ओके, थैंक यू। नाज़रीन, ये इन नौजवान का मानना है कि इन्होंने बी फार्मेसी का कोर्स किया है और इसी तरह इनकी तरह हज़ारों नौजवान हैं जो मुख्तलिफ प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स हैं और एक अच्छी नौकरी के लिए, एक अच्छे रोज़गार के लिए तलाशी हैं। उनका मानना है कि हमारा जो मानना है कि तेलंगाना रियासत काफ़ी वसी रियासत है, काफ़ी रिसोर्स है उसके पास। इसके अलावा भी हमारा जो मुल्क है वो काफ़ी वसी है। वो उन्होंने कहा कि दोनों मरकज़ी और रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो नौजवानों का ख्याल करें, ख़ासतौर पर बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार दिलाने के लिए जहद करें और जो हमारा टैलेंट है उसको इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ इन नौजवानों की तरक्की के लिए देखें बल्कि मुल्क की भी तरक्की के लिए। एक नौजवान लड़की हमारे साथ है, वो हमसे बात करेंगे। మ్యామ్ చెప్పండి, మీరు ఈ ఎలక్షన్ వస్తుంది కదా, దాని గురించి ఏమనుకుంటున్నారు? ఎటువంటి నాయకులు మన అసెంబ్లీలో రావాలి, ఎటువంటి ప్రభుత్వం ఏర్పడాలి? అంటే చాలామంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరికీ ఉపాధి కల్పించి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు స్థాపించి వాళ్ళందరికీ ఉపాధి కల్పించాలని, అలాంటి నాయకులు రావాలని నేను అనుకుంటున్నాను. మీరు ఎంతవరకు చదివారు? డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది. అంటే జాబ్స్ పడుతున్నాయి కదా, చాలా వరకు కట్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ అని ఇస్తున్నారు. రిజర్వేషన్ కాకుండా మార్క్స్ టాలెంట్ని బట్టి ఇస్తే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. सर केसीआर सर 4 साल से सीएम ही है ना, उन्होंने अच्छा करे सर, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చాలా చేసిండు కేసీఆర్ సార్. వృద్ధులకు, రైతులకి, గర్భిణీ స్త్రీలకి చాలా మంచి కార్యక్రమాలు, పథకాలు. आप कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जा रही हैं? चिट्याल से आ रहे सर, नलगोंड का है। तो आप क्या समझते हैं, चिट्याल में जो आपका एमएलए था वो कौन सी पार्टी का है, टीआरएस का या कांग्रेस का? टीआरएस वीरेशम सर। तो आप क्या समझते हैं, आपके एमएलए ने वहाँ पर किस तरह का काम किया? सर उन्होंने अच्छा काम किया था, रोडान दलाया और वाटर सप्लाई अच्छा काम किया सर उन्होंने। अब अभी तो सीएम सर केसीआर सर आए तो अच्छा रहता सर, उन्होंने तो अच्छा काम करे और हमें उनको वोट डालते सर, किसको भी नहीं डालते। बेहद शुक्रिया आपका जी। हम लोग बात कर रहे थे दोनों नौजवान लड़कियाँ, यही कहना था उनका कि टीआरएस की हुकूमत ने ठीक ठाक काम किया है और जो भी हुकूमत आएगी वो नौजवानों के लिए रोज़गार फराहम करे। नाज़रीन, अभी हम नारकटपल्ली से नलगुंडा तक का सफ़र कर रहे थे। हमने बस में मुसाफिरीन से बात करने की कोशिश की, ख़ासतौर पर नौजवान मुसाफिरीन जो हैं वो तकरीबन सब नौजवान यही कह रहे थे कि वो तालीम याफ्ता हैं और उनके पास डिग्रियां हैं, लेकिन जो है सही तरीके से जॉब उनके पास नहीं है। वो यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है नौजवानों के लिए पॉलिसी बनाए और नौजवानों के लिए कुछ पॉलिसी बनाए और उन्हें रोज़गार के मौके फराहम करे। नाज़रीन, हम नलगुंडे में हैं, अभी बस स्टैंड के अतराफ हम थोड़ा घूमे फिरेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात के बारे में उनकी क्या राय है। नलगुंडा बस डिपो पर हैं, यहाँ पर हमारे साथ नौजवान हैं, चंद उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद जलील है, मैं नलगुंडा इस्लामपुर में रहता हूँ जी। आप क्या करते हैं, क्या काम काज करते हैं? कारोबार करते हैं जी। भाई बताएं कि अभी जो इलेक्शन आने वाला है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये इलेक्शन जो वक्त से पहले मुनाकिद हुआ है, क्या ये मुनासिब हुआ है? नहीं, मुनासिब तो नहीं है वक्त से पहले। आप क्या समझते हैं, पूरा टर्म कंप्लीट किया जाना चाहिए था? 2019 में ही मुनाकिद होना था? हाँ, 2019 में करा तो बेहतर था। क्या नुकसान हुआ, आप क्या समझते हैं, क्या नुकसान हुआ वक्त से पहले कराना? बजट नुकसान, सब नुकसान, टाइम का नुकसान, फालतू में इलेक्शन 6 महीने पहले रख दिए हैं, वो तो मुनासिब नहीं है आवाम के लिए। ठीक है, अब चलिए इलेक्शन आ रहा है तो आप क्या समझते हैं, जो भी नई हुकूमत आएगी वो क्या करना चाहिए, उसको सबसे पहले अहम काम क्या, उसका क्या होना चाहिए? अब माइनॉरिटीज़ के लिए तो कोई हुकूमत कोई ऐसा काम नहीं करी है
पिछले 20 साल 10 साल से। अभी आने वाली गवर्नमेंट तो थोड़ा ठीक करे, कौन सी भी आओ, कांग्रेस हो TRS हो, कौन सी भी आओ। अभी तो कोई भी कुछ भी नहीं करे माइनॉरिटीज़ को। अभी स्कॉलरशिप नहीं दे रहे, लोन्स नहीं दे रहे, फीस रियम्बर्समेंट नहीं है बच्चों के लिए। 4 साल से एक फीस रियम्बर्समेंट नहीं डाले, कॉलेज उठा दिए। माइनॉरिटीज़ को कोई फीस का रियम्बर्समेंट नहीं है, लोन्स नहीं है, घरा नहीं है, क्या भी नहीं है। अभी जो इलेक्शन जा रहा है उसको आप किस तरह समझते हैं, किस तरह का इलेक्शन होगा? इलेक्शन तो जल्दी आया, इसमें तो मेरे को तो कोई दिक्कत समझ में नहीं आई। लेकिन क्या है, नौजवान के लिए नौकरियों का ताल्लुक से, उस ताल्लुक से ग्रुप 2 का वो सब हर चीज़ रुक गई। और जो सब मिशन भगीरथ था बोल के, मिशन काकतिया बोल के सब अदर बीच में रोक दे के 6 महीने पहले इलेक्शन लेके आए। बस वो एक दिक्कत तो सबको नज़र आ रही सो है। बाकी रही बात तो हर चीज़ के दाम तो बढ़ गए। केसीआर साहब आएंगे, 12% रिजर्वेशन लाएंगे माइनॉरिटीज़ के लिए और कुछ भी करेंगे। अहम मुद्दा क्या था? नौकरी का था, रोजगारी का। रोजगारी खत्म हो गई, समझे हर कोई भी, या प्राइवेट रंगम में हो तो परवाह नहीं, कौन सा भी बहरहाल रोजगारी का मसला क्लियर कर सकते, बट वो कुछ भी नहीं हुआ। एक और नौजवान है ताज साहब। ताज साहब बताएं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सब जो हर कोई कांग्रेस का तस्करा कर रहा है। कांग्रेस के जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, जो एक्स MLA हैं, लगातार 4 बार मुकाबला कर चुके हैं, इस बार भी जीतेंगे। आप TRS के जो है हामी लगते हैं, तो आप बताएं, आपके जो उम्मीदवार हैं या TRS के यहाँ पर जीतने के कितने चांसेस हैं? पिछले 20 साल से जो सो यहाँ पे नलगुंडा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से ठहर के हैं, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं करें। हालांकि 10 साल कांग्रेस हुकूमत थी, यहाँ पे कोई ज़्यादातर जो सो अर्बन डेवलपमेंट नहीं है, ना विलेज मंडल्स में भी ज़्यादा डेवलपमेंट्स नहीं हुए। तो लिहाजा आपकी जो बात जो है सो पब्लिक जो है सो बदलाव चाहती है। अभी जो है सो गुज़श्ता 4-5 साल से जो सो TRS हुकूमत बहुत सारे स्कीमात लेके आई हैं। इसमें गरीबों के लिए भी बहुत सारे स्कीमात हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए भी हैं। बेहद शुक्रिया नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात। मेरे साथ नलगुंडा हल्का असेंबली के TRS कैंडिडेट भोपाल रेड्डी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपके अपोनेंट जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, लगातार 4 बार जो है जीत चुके हैं, 5वीं बार मुकाबला कर रहे हैं। लास्ट टाइम आपसे भी मुकाबला हुआ था, तो बोलिए इस बार मुकाबला कैसा रहेगा? क्या तैयारी है उनसे मुकाबले के लिए आपकी? చాలా మంచిగా ఉన్నది. పోయినసారి కూడా మనమే గెలిచేవారం. సింబల్ దాంతో మనము 18 రౌండ్లు లీడ్ వచ్చి లాస్ట్ సింబల్ ప్రాబ్లం తోటి ఓడిపోవడం జరిగింది. సింగిల్ సింబల్ అయితే మనం ఒక 20,000 ఓట్లతో గెలిచేవాళ్ళం. మరి అన్నిటికన్నా మరి పోయినసారి గెలిచినటువంటి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నటువంటి వెంకటరెడ్డి మరి ఒక 5 ఏళ్ళు అసలు జనం మధ్యలోకి రాకుండా కనపడకుండా హైదరాబాదులోనే ఉన్నాడు. మరి అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా 10 ఏళ్ళు అధికారంలో ఉండి మంత్రిగా 4 సంవత్సరాలు ఉండి ఈ నల్గొండ నియోజకవర్గానికి పట్టణానికి రూపాయి తీసుకొచ్చినటువంటి దాఖలాలు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నిధులు వచ్చినటువంటి అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ 56 కోట్ల రూపాయలను కూడా అందులో కమిషన్లు తీసుకొని నాణ్యత లేకుండా డ్రైనేజీని పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసి పర్యవేక్షణ లేకుండా దాన్ని చెత్త డ్రైనేజ్గా తయారు చేసిండు. అది చాలా ప్రజల మధ్యలో, ప్రజల హృదయాల్లో బాధతో ఉన్నారు. మరి అదేవిధంగా స్ట్రాంగ్ వాటర్ని 26 కోట్ల రూపాయలతో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నిధులు వస్తే దాన్ని పూర్తి చేయకుండా వాళ్ళ అల్లునికి ఇచ్చుకొని మెత్తగున్న కాడ తర్వాత అక్కర్లేని కాడ తీసుకుపోయి మరి ప్రైవేటు స్థలాలలో వదిలేసి దాన్ని ఆపేసినటువంటి పరిస్థితి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి. మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరి 7 విలీన గ్రామాలు ఉంటాయి. 7 విలీన గ్రామాలను పట్టించుకోకుండా రోడ్డు లేక, డ్రైనేజ్ లేక, సీసీ రోడ్డు లేక, త్రాగడానికి నీళ్లు లేక, కరెంట్ పోల్ లేక, కరెంట్ పోల్ లైట్లు లేక, ట్రాన్స్ఫారం ప్రాబ్లము, లో వోల్టేజ్ ప్రాబ్లాలతోటి 7 విలీన గ్రామాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పట్టించుకోలేనటువంటి పరిస్థితి. మరి అదేవిధంగా మైనార్టీ ఏరియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, మైనార్టీ ఏరియా SC STలకు సంబంధించినటువంటి ఏరియాలలో కనీసం 20 సంవత్సరాల నుంచి మరి ఇలాంటి అభివృద్ధి చేయకుండా నిర్లక్ష్యం చేసి మరి వాళ్ళు అస్తవ్యస్తంగా మరి ఆ కుటుంబాలకు సంబంధించినటువంటి వారికి ఒక ఇంటి స్థలం కానీ ఇల్లు కట్టించినటువంటి దాఖలాలు లేవు. ఒకే ఇంట్లో 4-5 కుటుంబాలు మగ్గిపోతూ ఉన్నాయి. మరి అవన్నీ కూడా ఈరోజు మైనార్టీస్ అందరూ కూడా గుర్తు చేసుకుంటా ఉన్నారు. खैरियत से? दुआ है भाई। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल इम्तियाज है। इस गांव का नाम क्या है? पानगल। ओके, इस गांव की खासियत क्या है? ये किस बारे में जाना जाता है, किस हवाले से जाना जाता है?
ये कांग्रेस पार्टी चल रही है यहाँ पे, कांग्रेस का है, कोमट रेड्डी की हवा चल रही है। अच्छा, आप इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जी, तो यहाँ पे जो है अब इलेक्शन आया हुआ है, किस किस्म की यहाँ पे का माहौल है? लोग आ रहे हैं आप लोगों से मिलने के लिए? आ रहे हैं, वो टीआरएस हर पार्टी वाले आ रहे हैं, टीआरएस वाले आ रहे, कांग्रेस वाले आ रहे, बीजेपी वाले आ रहे, सीपीएम वाले आ रहे, हर पार्टी वाले आ रहे हैं। ज़्यादा तो कांग्रेस आने का सिचुएशन है। ये 4 मरता कोमट रेड्डी जीते यहाँ पे एमएलए, अब इन्हें भी आने का कोशिश कर रहे हैं लोग। कौन आने का कोशिश कर रहे हैं? कोमट रेड्डी साहब 5वीं बार जीतने की कोशिश में। हाँ, तगफुर पे है टीआरएस कांग्रेस। उनके खिलाफ जो लीडर हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं? वो टीआरएस भी आदमी तो अच्छा है, कंचला भूपा रेड्डी बोलते सुनो, मगर गवर्नमेंट उतना क्या नहीं करी। वो जो खेता वाले उनको वो पॉलिटिकल वो लोगों को फायदा हुआ, मगर पब्लिक को क्या नहीं हुआ। वो नौकरी देता हूँ बोलिया, वो KG to PG बोलिया, कुछ भी नहीं हुआ। वो पूरे के खिलाफ भी है। तो आपकी दुकान कब से है? आप कब से आपकी दुकान? 15-20 साल से। तो गुजर बसर हो जाता है आपका? हाँ, आपका घर वगैरह चल जाता है दुकान से? हाँ, चलते रहता। क्या क्या करते हैं आप? ये क्या है? ये पंक्चर की दुकान जी? बाइक, साइकिल, कार वगैरह सब करता हूँ, मैकेनिकल। हाँ, अच्छा, आपको ख्वाहिश नहीं है आपकी आप बड़ी दुकान डालें, शहर में जाएं? करना बोल को है, मगर गवर्नमेंट कुछ साथ देना ना, कुछ भी साथ नहीं दे रही हम लोगों को। यहाँ पे मराठी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का लोन वगैरह देते बोल के बोलते हैं, कभी अप्लाई करें आप? वो टीआरएस गवर्नमेंट आया, से एक लोन नहीं दिया, तो खेता वाले को दिया, वो ज़राअत वाले को दिया, मगर हमारे जैसे लोगों को पढ़ उनको क्या नहीं दिया। कुछ भी नहीं मिला आप लोगों को? कुछ भी नहीं मिला। कुछ आप लोगों को शादी मुबारक स्कीम वो जो वगैरह कुछ आप अप्लाई करें? आपके खानदान में कोई? खानदान वाले को आया। हाँ, तो कोई आपके बच्चे जो मराठी स्कूल वगैरह चल रहा है उसमें कोई पढ़ रहे हैं? हाँ, पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं? कौन पढ़ रहा है? लड़का पढ़ा था, तो दूसरे बच्चों को भी इसमें ज्वाइन करे। माइनॉट गुरुकुला स्कूल में अच्छा है, वो एक अच्छा है। तालीम का वहाँ पे क्वालिटी कैसी है? मेयार कैसा है? अच्छा है, परवाना गुरुकुला पाठशाला में जबरदस्त है। तो इतना सब होने के बावजूद आप फिर टीआरएस से नाराज क्यों हैं? नाराज क्या है? वो तो खाली हो बच्चों को पढ़ते से उनको सेव करिया, लेकिन निरुद्योग को कुछ भी नहीं करिया। हाँ, और KG to PG बोले उन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। नौकरियाँ 1 लाख नौकरियाँ देता हूँ बोले, नौकरियाँ दिया नहीं। हाँ, ये खेती बाड़ी वालों को, पॉलिटिकल वालों को, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वालों को सैलरियाँ बढ़ाया। हमारे जैसे लोग लोना दिए तो हम लोग बिजनेस बड़ा कर लेते ना, हम लोग कुछ भी लोना नहीं दिया। ये 4 साल से कुछ भी लोना दिया नहीं, करिया नहीं, ऐसा है मसला। तो अभी हम नलगुंडा शहर के बाहर एक देहात में हैं, इस देहात का नाम पानगल है। तो अभी हम यहाँ बात कर रहे थे, लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे और टीआरएस को लेकर यहाँ पर थोड़ी बहुत नाराज़गी चल रही है। उनका मानना है कि टीआरएस हुकूमत ने सिर्फ किसानों को जो है वो मदद की, जो मेहनतकार हैं, जो मजदूर पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं या छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, उनको गवर्नमेंट ने उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचा। नाज़रीन, हमारा ये सफ़र जारी रहेगा, देखते रहिए। यहाँ पर चंद नौजवान और चंद लोग हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। साहब बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम यादगिरी। यादगिरी साहब, आप क्या काम करते हैं? भाई किराना शॉप। यादगिरी साहब, ये अभी जो है गवर्नमेंट 4 साल काम करी, ओके, तो आप क्या समझते हैं ये किराना शॉप जो छोटे छोटे बिजनेस वगैरह जो है उन लोगों को जो टीआरएस की 4 साल की गवर्नमेंट थी, क्या फ़ायदा पहुंचाई समझ रहे हैं आप? फायदा అంటే जनानी కొంచెం आप वोट डाल है, हम लोग कैंडिडेट को चूज करते, वो कैंडिडेट आए तो हमारा प्रॉब्लम कन्विंस करना, वो देखना, ऐसा हो तो नेक्स्ट हम लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं। जी, आप क्या समझ रहे हैं अभी कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन पे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, जिनको जो है लोग कंसीडर कर सकते हैं कि इनको वोट डालें? आप क्या समझते हैं? हम लोग भी जो भी पार्टी आने तो हम लोग आप क्या समझते हैं यहाँ पर दो ही पार्टीज मैदान में है या और 3-4 पार्टीज हैं? खाली 2 ही है, कांग्रेस और टीआरएस। तो आप क्या समझते हैं दोनों में कौन सी अच्छी पार्टी है? शायद अभी टीआरएस आए तो अच्छा करेगा भूपाल रेड्डी, अभी क्योंकि हम लोग कांग्रेस 20 साल से देख रहे हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं है। अभी करा भी हो रहा लेकिन अच्छा नहीं हो रहा है। तो आप बेजार हो गए, ये जो 4 साल ये एमएलए जो है 20 साल से हो गए। यस, जैसा कि आप देख सकते हैं, लोग नाराज हैं कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी से। नाजरीन, हम नलगुंडा शहर के बाहर एक रिजर्वायर है, उदय समुद्रम इसका नाम है। यहाँ पर जो है हमारे मछेरे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, आइए हमसे बात करते हैं और पूछते हैं
इस इलेक्शन को लेकर उनके क्या ख्याल हैं। सर मी पेट చెప్పండి। నా పేరు అంజనేయులు ఈ నల్గొండ పానగల్ ఉదయ సముద్రంలో చేపల వేటకు చేపలు పట్టడానికి మేము ప్రతిరోజు వస్తాము। చేపలు ఇంత ముందుకున్న దళారుల కంటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం గెలిచిన తర్వాత మాకు లోన్లు కానీ మా చేపల వృత్తి కానీ చేపల చెరువులలో సీడు పోసి మాకు వ్యాపారానికి చాలా అనుకరంగా కలిగించిన అటువంటి ఘనత కేసీఆర్ గారని కూడా మేము మనవి చేస్తున్నాము। ఇప్పటికి కూడా మాకు బైపాస్ రోడ్లో మార్కెట్ కూడా అమలు చేయాలని కూడా మేము గవర్నమెంట్ కోరుతున్నాము, అధికారులు కోరుతున్నాము। అంతేకాకుండా మా జీవన ఉపాధి ఈ చేపల మీదనే ఉంది కాబట్టి మాకు ఆ జీవన ఉపాధి కూడా కలిగించాలని కూడా మేము గవర్నమెంట్ మనవి చేస్తున్నాము। इनको जो लोन्स वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से मच्छरों को केसीआर हुकूमत ने टीआरएस हुकूमत ने वो तक पहुंचाए हैं, ये बहुत खुश हैं। ख़ास तौर पर जो दरमियानी आदमी थे इनका मानना है कि उसे ख़त्म कर दिया गया और ये खुद जो है अपना जो भी इनका जो मछली पकड़ते हैं वो इसे फ़रोख्त करने में कामयाब हो जाते हैं। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण साहब आप बताएं, आप यहाँ पर क्यों आते हैं रोज़ाना? डेली मच्छी पकड़ने का आते हैं, ले जाते तो फिर मार्केट में बेचते, वही ऐसे जीतते हैं अपने। जी आप क्या समझते हैं ये जो तेलंगाना बनने के बाद जो आप लोगों को कुछ फायदा हुआ? अभी तेलंगाना अभी है आया बोल के हम लोग खुशी में है, अभी अच्छा भी चल रहा है। केसीआर अभी मच्छी भी छोटे मच्छी भी डाल रहे समुद्र में, अच्छा जी रहा है जी। अभी जो नई गवर्नमेंट आ रही तो उसको आप क्या डिमांड करेंगे आप लोगों के वास्ते, आपकी ब्रादरी के लिए? अपन क्या नहीं बोल सकते ना, अभी तो चल रहा है। आपके बड़े लोग क्या डिमांड कर रहे हैं मछली के लिए, मछलियाँ पकड़ने वालों के लिए क्या होना पड़ेगा? सब नदी में डाल रहे ना, अभी अच्छा है, अभी तो कैसे यार अच्छा कर रहा है। नाज़रीन आज हम सफ़र कर रहे थे हल्के असम्बली नलगुंडा की। हमने देखा कि जो एक्स एमएलए हैं यहाँ के कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, वो गुज़िस्ता 4 बार से यहाँ पर जीतते आ रहे थे और इस बार भी वो कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। ये समझा जा रहा है कि जो टीआरएस के उम्मीदवार हैं भोपाल रेड्डी, उनसे उनका मुकाबला होगा और ऐसा लगता है कि यहाँ पर इन दोनों की कांटे की टक्कर होगी। नाज़रीन हमारा ये सफ़र जारी रहेगा, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम सियासी सफ़र। खुदा हाफिज़।